नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर। गुजरात बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां साबरमती में सास के सामने बहू के कथित किडनैप का मामला सुलझा। प्रेम संबंध और इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा। आगे बात करेंगे गांधीनगर की, जहां मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने मानसून और बारिश को लेकर दी अहम जानकारी। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। साबरमती इलाके में सास के सामने बहू के कथित किडनैपिंग का मामला अब सुलझ गया। इस घटना की शिकायत साबरमती पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप था कि क्रेटा कार में आए 2 से 3 युवक और एक युवती ने महिला को डिक्की में डालकर अगवा कर लिया। अब इस मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सूरत की उतरन पुलिस ने इस केस से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि युवती भी मामले में शामिल पाई गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी घेवरचंद उर्फ अभिषेक गुर्जर का शिकायतकर्ता की बहू से पिछले लगभग 7 सालों से प्रेम संबंध था और इसी संबंध के चलते कथित रूप से ये पूरी घटना सामने आई है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने कई राज्यों से स्कॉर्पियो, क्रेटा, i20, नेक्सन थॉर, हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियां चोरी करने की बात स्वीकार की है। साबरमती પોલીસ સ્ટેશનમાં તારીખ 27 મેના રોજ એક અપહરણનો ગુનો દાખલ થયો હતો, જેમાં શારદાબેન કરીને ફરિયાદી હતા અને એમના વહુ જે આ ગુનામાં અપહ્યત હતા, ભોગ બનનાર હતા, એમને એક ઘેવરચંદ નામનો આરોપી 3 માણસો સાથે એક સફેદ કલરની ક્રેટા ગાડીમાં આવી એમના ઘરેથી અપહરણ કરીને લઈ ગયો હતો। એ મુજબની ફરિયાદ હતી। આ ફરિયાદને આ ગુનાને ડિટેક્ટ કરવા માટે સાબરમતી પોલીસ સતત પ્રયત્નશીલ હતી। એ દરમિયાન સુરત પોલીસ, હરિયાણા પોલીસ, મહારાષ્ટ્ર પોલીસ સાથે સંપર્કમાં હતી અને આ આરોપી જે છે એ ભોગ બનનારને મહારાષ્ટ્રથી સુરત બીજી જૂને લાવતો હતો। એ દરમિયાન ઉત્તરાયણ પોલીસ એ આ ગુનાની જાણકારી ધરાવતી હતી। એણે આ આરોપી, ભોગ બનનાર અને આરોપી અને ભોગ બનનાર જે ગાડીમાં ટ્રાવેલ કરી રહ્યા હતા એ થાર ગાડીને રોકી અને આ આરોપીની અરેસ્ટ કરી લીધી હતી અને ત્યારબાદ આ ગુનાના કામે સાબરમતી પોલીસને આ આરોપી ભોગ બનનાર એ આપી દીધા હતા। અપહરણ કરવાનું કારણ શું હતું અને એ કોણ છે, બેકગ્રાઉન્ડ શું છે આ અપહરણ કરનાર આરોપીનું? આરોપીનું નામ ઘેવરચંદ ગુર્જર છે। એ રાજસ્થાનનો છે અને રાજસ્થાનમાં જ એ ભોગ બનનાર જ્યારે માઇનર હતી ત્યારે એને મળ્યો હતો અને મેં પ્રેમમાં લલચાવી, ફોસલાવી અને ભગાડીને લઈ ગયો હતો, જેના કારણે એના ઉપર ભોગ બનનાર સાથે બળાત્કાર અને પોક્સો એક્ટ મુજબ જે જાતીય દુષ્કર્મ છે એનો ગુનો દાખલ થયો હતો અને એ ગુનામાં એને 20 વર્ષની સજા પડી હતી। ત્યારબાદ 1 વર્ષની સજા કાપીને આવ્યો હતો અને 2 વર્ષથી એ પેરોલ જમ્પ કરીને ફરતો હતો અને એ દરમિયાન ફરીથી ભોગ બનનાર અને આરોપી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા અને ત્યારબાદ ફરીથી ભોગ બનનાર સાથે સંપર્ક થતા એ ભોગ બનનારને ભગાડીને લઈ ગયો હતો। જે ભોગ બનનાર છે એના લગ્ન પણ થઈ ગયા હતા જ્યારે એ પુખ્ત વયની થઈ ત્યારે અને છૂટાછેડા બી થઈ ગયા। એ છૂટાછેડા થવાનું કારણ શું હતું? ફરી બંને સાથે આવ્યા? ભોગ બનનારના 2 વખત લગ્ન થયા છે, પરંતુ બંને વખત એના કહેવા મુજબ એ 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની હતી ત્યારે લગ્ન થયા હતા। પ્રથમ વખત જ્યારે એના લગ્ન થયા ત્યારે એને ભોગ બનનાર અને આરોપી વચ્ચેનો જે આ કેસ હતો એની લગ્ન પહેલા જાણ નથી, પરંતુ લગ્ન બાદ જાણ થતા એ છૂટું થયું હતું અને બીજી વખત એમના લગ્ન જે છે એ હાલ ચાલુ છે। ક્યાં ક્યાં લઈને ફર્યો હતો અપહરણ કર્યા પછી અને જે આરોપી છે એ આરોપી સામે કેટલા ગુના ક્યાં ક્યાં નોંધાયેલા છે? વાહન ચોરીના આરોપી અને ભોગ બનનાર અમદાવાદથી નીકળી અને સુરત પછી મહારાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ જગ્યાઓએ રાત રોકાયા હતા, અલગ અલગ જગ્યાએ ગયા હતા અને ત્યારબાદ પરત બીજી જૂને એ લોકો સુરતમાં એન્ટર થયા હતા। सूरत सिटी में एंटर थता त्यानी जो स्थानिक उतराण पुलिस है। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने केरल में मानसून के आगमन के साथ ही देश और गुजरात में आगामी मौसम को लेकर महत्वपूर्ण अनुमान जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 12 जून तक मानसून गोवा और मुंबई के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है, जहां 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। वहीं 8 जून तक तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विशेषज्ञ ने यह भी अनुमान जताया कि इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है और लगभग 86 से 90% बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अभी अभी देश का उत्तरीय पर्वतीय भागों में और उत्तर भारत में
एक बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये समझाता नहीं है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब वरसाद के ऋतु में क्यों आ रहा है। कोई अनजाने अनजाने वजह से ये पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। ये पश्चिम विक्षोभ जून में भी आने की शक्यता है। लेकिन मौसम के बारे में हम देखें तो केरल का से बैठे हुए मौसम को बरसात मुंबई तक आज 12 जून तक आ जाने की शक्यता है और पश्चिम घाट में ज्यादा बरसात की शक्यता है। कोई कोई भाग में लगभग 100 mm के इससे भी ज्यादा बरसात की शक्यता है। पश्चिम सौराष्ट्र के भागों में भी बरसात की शक्यता है। ये पूर्वे तारीख 12 से 15-16 जून में राज्य का गुजरात के भिन्न भागों में बरसात होने की शक्यता है। पवन का जोर ज्यादा रहेगा। 8 जून को समुद्र में पवन की फेरबदल होगा और गर्मी भी बढ़ेगी। ये मध्य गुजरात, पूर्व गुजरात और उत्तर गुजरात के कई भागों में गर्मी बढ़ने की शक्यता है और कोई भाग में महत्तम उष्ण तापमान 43 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। और ये मौसम 18 से 20 में आएगा, 7 जुलाई तक चलेगा और फिर भी मौसम अच्छा आने की शक्यता है। लेकिन अल नीनो की वजह से कहीं न कहीं मौसम में गड़बड़ तो होने की आशंका है। और आगे देखें तो लगभग अगस्त में भी मौसम अच्छा रहने की शक्यता की वजह से जुलाई मास में एक मिडल जूलियन ऑसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव आने की शक्यता है, जिसके वजह से बरसात होगी। लेकिन बरसात में तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हैं। अल नीनो की आशंका है। इस वजह से देश के भिन्न भागों में 86% से 90% बरसात होने की शक्यता है। और ये शक्यता में खाद्यान्न कई भाग में खाद्यान्न की व्यवस्था भी रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खाद्यान्न की भी दिक्कत आने की शक्यता है। अचानक भारी बरसात में ब्रेक ऐसा मानसून रहने की शक्यता है। जब ब्रेक लगे तब किसान भाइयों पियत की व्यवस्थापन हो तो अगर इनके पास हो तो करनी अच्छी रहेगी। जी। गांधीनगर से सीनियर संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।